हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है अनीशा मैम। काफी टाइम के बाद ये इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है क्योंकि मैम थोड़ा बिजी थी अपने वर्क में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू में, तो यार स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम कि आप अपने टाइम को शेड्यूल करके इस इंटरव्यू में आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें। Sure. Thank you so much, Utkarsh. And I'm glad that I managed to, be there with you for the interview session, which was pending a long time back. So good evening, everyone. This is Anisha Perswani, a fashion designer and a celebrity stylist by profession, owner and founder of Expressions Designing Studio, which is based in Mumbai. And I am having an experience of over 14 years in this fashion industry. We are into customization of Indian as well as Western outfits for all. So this is a brief about what the work I do. Apart from that, I'm a crown and title holder of many beauty pageants like Mrs. Pride of India, Style Icon of India, India Diva, Women of Substance, and one of the powerful personalities of India 2023. ओके। तो ऑडियंस, इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको समझ में तो आ गया होगा कि काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये जो फैशन डिजाइनर वाला जो अपना डोमेन है, आपका जो करियर है, ये आपने क्यों चूज किया? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या कुछ कैसे? See, Utkarsh, basically, fashion was my passion, since childhood. This, अगर मैं ये नहीं करती तो मैं क्या करती? I can never say about it because this is what I can do the best. Because I love to stay groomed, I love to dress up, and when I found the need, when you are going to a designer and they take a lot of time in delivering the outfits, so that was a need. I thought, why not I should be a designer and I will be that kind of designer who is delivering on time and giving the customer satisfaction. So my USP is the same. I believe in customer satisfaction, and if I say that I'll deliver in a proper frame of time, I make sure that I should do that. So the experience which I have faced when I was not a designer, I don't want the people to face the same when I am around. So this was the need of a designer who is very committed to the delivery of the outfits. Apart from that, I was very keen to dress up, so I thought, let help the community also to stay groomed and wear the clothes as per their body type. That's why I learned the designing course from JD Institute of Technology, and then I started my designing career because I feel like this is my passion and fashion was in my veins. So that's why I am a designer, and I really love what I do. दैट्स रियली वेरी नाइस। क्योंकि बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है पर वो पैशन में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, या बहुत लोग का बहुत मन करता है कि हम इस डोमेन में जाएं, बट वो सरकमस्टांसेस और चीजों के लेके भी अपना करियर नहीं परस्यू कर पाते हैं उसमें। बट आप दोनों ही चीजें कर रहे हो, इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, और उसे करियर भी बना रखा है। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो मैम, जो आपने मेंशन किया कि आप ओनर हैं एक्सप्रेशन स्टूडियो की, राइट? तो ये Yeah. क्या मतलब, क्या चीज़ है? ये एक स्टार्टअप है या बिजनेस है या कोई एसोसिएशन है? It's a business venture. It's a venture of me and my daughter, Simi. She's a makeup entrepreneur. So I thought of coming up, as a dress designer along with the makeup services. Why? Because designing is also a services of customization of clothes, right? But when you're wearing a good outfit, but if the apt makeup is not there, proper makeup is not there, then your look is incomplete. So that's why I thought, to merge both the thing, because beauty and fashion goes hand in hand. So that's why my thought was to create a venture, designing and makeup studio all together, and so that it helps the women, those who are coming to us, they can get the dress design, and along with that they can get the makeup look as well. Whenever you are going to a party or event, definitely you need a makeup. There are so many things to groom and team up with the clothes. So we try to help by combining both the services all together. That's why this venture started, which is Expression Designing and Makeup Studio. Later we also introduced the nails, because nowadays nails extensions are also very trendy, and it is also a part of a beauty package, grooming package. So we introduced that, and now we are coming up with the grooming sessions also, the workshops on grooming and makeup.
So that is also lined up with the expression studio, so that we can help the teenagers or the women or those who want to get the personality grooming classes, or they want to get the makeup learn from my daughter. They can come ahead and enroll for the courses. ओके। तो ये जो बिजनेस आप और आपकी डॉटर साथ में करते हो, ये आपके पर्सनल रिलेशंस को भी और इनहेंस करता है क्या, ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स एनहांस करता है, क्यों नहीं एनहांस करता है, क्योंकि आप ग्रूम्ड रहोगे, बिकॉज व्हाट यू आर सेलिंग यू शुड बी परफेक्ट इन दैट, यू नो व्हाट your outlook and your personality should speak about yourself. So Simi, when she does her own makeup, so people get confidence ki wow, what a makeup she has done. So that's why, you know, she gets a clientele about the makeup looks and all. And for me also, everybody loves the way I dress up, because I know my personality, what will suit me. You know, half of the people, they are not aware of their personality, कि उनकी personality क्या है, उनको क्या suit करेगा. Women can look beautiful in a sari also, in a dress also, in an Indian salwar kameez also, but it's all about their personality. They should dress up and choose the colors, prints, and the fabric as per their body type. Once they are, you know, sure about it, what suits them, then it's good to go. Like, that's why as a designer I'm here. And definitely when you are dressing up, आप खुद ही अच्छे से अगर dress up हुए हो, तो definitely आपके ऊपर भी लोगों का trust बना रहता है. So yeah, it helps in the business. Yeah. तो मैम अगर आपके डेली रूटीन के बारे में बात करें कि मतलब बिजनेस भी है, घर भी है, फैमिली भी है, सब कुछ एक साथ मेंटेन करना रहता है, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन यही रहता है कि आई शुड मेंटेन अ बैलेंस इन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. इट इज नॉट वेरी इजी टू, यू नो, बहुत सारे लोग, मैं ये कहना चाहूंगी, जो हाउस वाइफ्स है, व्हाट जॉब दे आर डूइंग, दैट्स सुपर अमेजिंग. And as today is a Mother's Day, I would like to wish all the moms, those who are sitting at home and doing, like, they are homemakers, बट उनको ऐसा फील कराया जाता है कि वो कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन करियर. So I would like to salute them, you know, whatever they are doing, that is not also an easy task. क्योंकि घर संभालना itself is a full fledged job. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कुछ करियर में करना चाहते हो, तो ये भी मैं कहना चाहूंगी विमेन को कि आप अपने ड्रीम्स को लिमिटेड मत रखिए. डोंट, यू नो, स्टॉप योरसेल्फ डूइंग वॉट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ. You should always dream and think what you are good at it, and start doing something in your career also. And time management is very important to balance the personal and professional life. So mera day jaise start hota hai, first of all is my home, my kids. I balance my time and manage my time. First half of the day completes the home duties and responsibilities, and then later when I am at my workplace, I don't attend the calls anywhere from, you know, related to home and all something. अगर मैं घर में हूँ तो मैं 100% घर में हूँ. अगर मैं काम में हूँ तो मैं 100% अपने काम में फोकस करना चाहती हूँ. बिकॉज यू नो, आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते हो कि मैं ये भी करूँ और वो भी करूँ. मैं परफेक्ट मम्मी बनूं, मैं परफेक्ट ये बनूं. नो बडी इज परफेक्ट, यू नो, मिस्टेक्स हमसे भी होती है. वी ऑल्सो फील सिक एंड वी गेट नॉट वेल सम डेज. कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं कि हम लोग ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बट समटाइम्स यू हैव टू वर्क एंड बैलेंस योर हेल्थ, योर फैमिली, your work, your clientels, everything. So it's all about the time management, I suppose. Like, you have to manage the time. First you give the time at home, and then when you are at a workplace, you give your 100% at your work. ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। क्योंकि एक बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने सारी चीजों को करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत देर तक काम करके खुश नहीं रह पाओगे, राइट? प्रॉपर Correct. बैलेंस तो जरूरी है। तो मैम अगर बात करें आपके सपोर्ट सिस्टम की, आपके मोटिवेशन सोर्स की, तो वो क्या रहा आपकी पूरी जर्नी में? Motivation and support is my family and my friends, and also my clients. They are more like my family. उनके जो positive feedbacks आते हैं after, you know, I deliver my work and give them, जो वो positive feedbacks आते हैं, that give me immense pleasure, more than what money I earn. So that is a big source of motivation for me. Okay. तो चैलेंजेस के बारे में अगर बात करें, तो ऐसे कौन से आपके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपको रहे हैं फेस करने को, जो आपने अभी तक करे हो? चैलेंजेस बहुत रहते हैं. पहले तो स्टेप आउट होना अपने घर से. आई वॉज अ हाउस वाइफ, यू नो. सो स्टेप आउट होना अपने घर से एज अ करियर वुमेन, दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज, कि आप घर से निकल रहे हो.
और कुछ करना चाहते हो लाइफ में, वो एक बड़ा चैलेंज फर्स्ट तो वही आता है। उसके बाद चलो आपने डिजाइनिंग कर लिया, उसका फीस भर दिया, अब डिजाइनिंग करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, देन द चैलेंज कम्स लाइक ऑफ ओपनिंग योर ओन आउटलेट, हाउ टू गो अहेड। और वो आउटलेट खोलने में भी मुझे काफी टाइम लगा, लेकिन वंस आई ओपन माई एक्सप्रेशन स्टूडियो, देन आफ्टर दैट आई हैव नेवर लुक बैक। बट चैलेंजेस वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस एंड हार्डवर्क को फेस करना पड़ा। बट एक ही पॉइंट बोलूंगी, यू शुड नेवर गिव अप। आप रो, कुछ भी करो लाइफ में अपने हार्डशिप्स के साथ, बट यू शुड नेवर स्टॉप। एंड ऐसे क्या कहा जाता है ना कि हार के बाद ही जीत है। तो जो चैलेंजेस आप फेस करते हो या कुछ अगर फेलियर्स भी फील करते हो, देखते हो लाइफ में, तो उसके बाद यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल 100%, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अप। So that's a mantra of your life, that if you want to achieve success, face the challenges, embrace the challenges. मैं तो वेलकम करती हूँ, आ जाओ, जो challenges आते हैं, I'm ready to face, bring it on. बहुत ही अच्छी बात है ये तो, क्योंकि चैलेंजेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऑल यू कैन डू इज फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू देम और आगे बढ़ो। Yeah, राइट। correct. तो मैम जैसे कि ये 2023 है, राइट? तो अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले, लिखा लाइक आपको टाइम मशीन मिल गई और आपको टाइम में वापस जाने का मौका मिल रहा है, तो कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई ऐसा काश है कि यार तब जाके मैं पीछे जाऊं वक्त में और इसे चेंज कर लूं, ऐसा कुछ? नहीं, no, no regrets. I would say on that note कि thank you God, thank you Almighty. आपने जो भी मुझे दिया है, मैं बहुत उसकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में, भगवान ने जैसी मुझे लाइफ दी है, आई एम सुपर ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, इमेंस ग्रेटिट्यूड टू गॉड। अच्छी बात है कि आपको कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो मैम मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप जिस स्टेज पर हो अभी, आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, आपने काफी सारे अवार्ड्स भी जीत लिए हैं, राइट? आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो अभी आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है कि अभी जैसे इतना मैं ये कर रही हूँ, आने वाले 2 साल में मैं ये करूंगी और आने वाले 3 साल में ऐसा करूंगी, ऐसा कुछ प्लान कर रखा है आपने, कुछ फ्यूचर प्लान अगर आप डिस्क्लोज ऑफ करना चाहें तो? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। हर किसी का लाइफ में विजन और मिशन जरूर होता है। सो मेरा भी विजन है लाइफ में। मेरे भी गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। सो फार मैंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। मैं उससे बहुत content हूँ। I'm full with the heart, with the immense gratitude, but still not very satisfied in life. I'm very limitless and unstoppable kind of women, जो जिसको मतलब करते रहना है, और चाहिए, मतलब और करना है। You don't have to be stop, कुछ स्टॉप नहीं कर सकता है आपको। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वो सब आपके ऊपर ही है कि आप कैसे आगे जाते हो। सो यस, मेरा विजन ये है कि मैंने ऑल ओवर इंडिया फैशन शोज किए हैं, like you name it, the place like Delhi, Pune, Surat, Goa, Mumbai, everywhere I have done the fashion shows. But my aim is to do now, and my vision is to go international level. Also, I'm coming up with a fashion show in Agra also. In a couple of months, I will be doing the show and the exhibition over there. That's my vision. Also, my website is coming up. तो मेरा next vision वो भी है कि मैं पर्सनालिटी और ग्रूमिंग क्लासेस को और बढ़ाऊं, और जितने लोगों को हो सके ग्रूमिंग सेशंस दे सकूं, सो दैट दे एक्सेल इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। दैट्स माय विजन। तो मतलब अभी कर लिया काफी कुछ अचीव, बट अभी बहुत कुछ और करना है, काफी चीजें लाइंड ऑफ अप कोर्स। है, राइट? यस। तो मैम मैम आपने वो तो सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे ये काम छोड़ दो, टाइप्स जो चीजें होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है कि यार क्या कर रहे हो ये सब, क्या जरूरत है इस सब चीजों की, वुमेन ऐसा नहीं करती हैं, घर में रहो, ये करो वो करो, लो, ऑल दी नेगेटिविटीज। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? See, you have to set the boundaries with the people who do not appreciate you. जो आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको एक बाउंड्री सेट करनी होती है। लर्न टू से नो टू द थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी। कुछ चीजें सुन के हम लोग खुद ही अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में रहता है कि इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। पीपल विल से नो, एंड यू कांट मेक सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टू एवरीवन। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कोई ना कोई आपसे नाराज जरूर रहेगा। तो आप सबको खुश कर नहीं सकते हो, कितना भी आप अच्छा चलोगे तो भी। खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए अपनी बाउंड्री सेट करना जरूरी है। चैलेंज करना है सेल्फ नेगेटिव टॉक को। किसी ने बोल दिया, हम लोग ये सोचे हाँ यार, मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नो,
because that is their perception, you know, they think that it is wrong, I don't think it is wrong. So notice when you're being, you know, being self talk, खुद से ही आप नेगेटिव अपने बारे में सोच रहे हो, उसको रिप्लेस करके अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाना बहुत जरूरी है कि नो, वॉट एवर आई एम डूइंग गुड, एंड इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल बी अलोन। ये तो दिमाग में बना के चलो कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो कोई भी आपके साथ रहेगा नहीं, देयर विल बी मेनी पीपल दोज हु विल पुल योर लेग डाउन, क्योंकि सब कोई यू नो आपको उड़ते हुए देखना नहीं चाहता। कुछ कुछ लोग होते हैं जो पंख काटना चाहते हैं, तो उन लोगों की परवाह ना करते हुए आप उड़ते रहो और लाइफ में सक्सेसफुल होते रहो। सो डोंट यू नो एंटरटेन द पीपल दोज हु आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर फीलिंग्स, दिस इज द थिंग कि मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ, और मैं अपने आप पर बहुत बिलीव करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए सही कर रही हूँ, एंड आई एम इंस्पायरिंग मेनी अदर वुमेन ऑल्सो, आई बिलीव दैट। राइट। ये तो है मैम, आप कितना भी ऊपर जाओगे आपको नीचे खींचने वाले तो हजार लाखों कई मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, और आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते हो। राइट। यू शुड बी फोकस ऑन योर वर्क, ऑन योर एम्बिशंस, ऑन योर गोल्स। You राइट। should mind your own business rather than, you या। know, giving them a back forth reply. You should mind your own business. राइट। तो मैम जैसा कि आप भी क्रिएटिव डोमेन में बिलोंग करते हो, फैशन डिजाइनर, राइट, तो ये क्रिएटिव डोमेन्स की एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड है कि हम कई बार जैसे कि अब इसमें क्या डिजाइन करें, कुछ आइडिया जो होता है ब्रेन स्टक कर जाता है कभी कभी। राइट। Mm-hmm. समझ में नहीं आ रहा Mm-hmm. कैसे डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, तो उस टाइम पे जब आपका ब्रेन स्टक हो जाए तब आप क्या करते हो? ऐसा कभी हुआ तो नहीं है उत्कर्ष, लेकिन कभी अगर हो जाता है तो एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक। सो आई री इन्वेंट, रिजुविनेट एंड यू नो रिफ्रेश माई सेल्फ। एक रिफ्रेश बटन आता है लैपटॉप में भी, हमारे हमारे फोन में भी आता है। जब सब हैंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो वी रिफ्रेश अवर माइंड, वी रिफ्रेश अवर बॉडी, टेक अ ब्रेक, गो फॉर आउटिंग, चिल विथ योर फ्रेंड्स एंड डू वॉट एवर यू फील लाइक अ मी टाइम। जो आपको करना है आप वो करिए, एंड देन अगेन द आइडियाज विल फ्लोट अप इन योर माइंड। दैट्स व्हाट आई फील। राइट। तो मैम अगर कोविड सिनेरियोज को कंपेयर करें, तो जो प्री कोविड सिनेरियो था और जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है, राइट, मतलब अराउंड 2020 21 से पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम, तो आपके काम पे, आपके जो बिजनेस है, इन पे कैसा इफेक्ट रहा? कोविड के टाइम पे तो बहुत इफेक्ट रहा, सबको इफेक्ट हुआ इनफैक्ट कोविड की वजह से। इट वाज क्लोज्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 to 6 months, एज वी ऑल नो, वी वर एट होम, यू नो। लाइफ बहुत ऐसे स्टिल हो गई थी, यू नो, एकदम रुक गई थी। सो इवन माय स्टूडियो वाज क्लोज्ड, बट आई मैनेज्ड टू, यू नो, कीप द स्टूडियो स्पेस फॉर माई सेल्फ बाय पेइंग द रेंट्स डिस्पाइट आई वाज नॉट वर्किंग ओवर देयर। वो टाइम भी हमने, टफ टाइम था, यू नो, व्हेन यू आर नॉट अर्निंग बट यू आर पेइंग। सो वो टाइम भी हमने निकाल लिया, बट that's what, you know, hardships, as I told you, कि hardships आपको challenges जो life में आते हैं उसको face करना पड़ता है, तभी आप आगे जाते हो। and touch wood, covid के बाद it has been immense, you know, बहुत अच्छा flourish हुआ है, prosperity हुई है, हर चीज में सब बहुत अच्छा हुआ है। you know, महंगाई बढ़ गई है, no doubt। हर चीज में जो मैं क्लॉथ या फैब्रिक्स पहले लेती थी, अब उसके कॉस्टिंग बढ़ गए हैं, थ्रेड्स के कॉस्ट बढ़ गए हैं, हर चीज का जो भी आपको एज अ डिजाइनर जो भी मुझे रॉ मटेरियल लगता है उनका कॉस्टिंग बढ़ गया है। सो इन दैट केस वी आल्सो हैव टू इंक्रीज द प्राइस ओवरऑल, यू नो, फ्रॉम द कस्टमर्स। सो ये तो पूरा मार्केट पे ही अफेक्ट हुआ है, लाइक इट्स नॉट ओनली इन फैशन इंडस्ट्री, इट हैज अफेक्टेड ईच एंड एवरी इंडस्ट्री आफ्टर कोविड। राइट। तो अभी आपका काम मतलब काफी अच्छा चल रहा है, राइट? अब आपको मतलब ज्यादा सही लग रहा होगा कोविड के बाद से, जो। या बाय ग्रेस गॉड एवरीथिंग इज गुड। दैट्स रियली वेरी नाइस। मैम अगर बात करें आपकी पूरी जर्नी में आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में बताना हो आपने, जैसे कुछ स्पेसिफिक हो कि यार ये नहीं होते तो शायद मेरी जर्नी इतनी अच्छी, इतनी वैसी नहीं होती, तो वो कौन से इवेंट्स रहे होंगे? लाइफ चेंजिंग मतलब जर्नी में, फॉर मतलब योर ये जर्नी, नहीं होता। फॉर योर जर्नी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट्स हैं वो ये फर्स्ट यही है कि आई बिकेम द मदर ऑफ ट्विंस। ओह। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो आता है ना, जब आप माँ बनते हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कि मुझे बच्चों का भी आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। सो वो एक चीज होता है, जैसे एक फादर, एक लड़के को पता चलता है कि मैं फादर बन गया हूँ, तो उसके उसके ब्रेन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कि यू नो मुझे कमाना है अपने बच्चों के लिए। तो द सेम वे मदर ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड इन अ बेटर वे। सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई व्हेन आई बिकेम द मॉम, एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। ऑफ कोर्स इट्स फॉर एवरी वुमन।
सेकेंड वॉज व्हेन आई वॉन द बेस्ट डिजाइनर अवार्ड फ्रॉम जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब मैंने अपना डिजाइनिंग पूरा किया तब मैं एकदम हाउसवाइफ थी, मुझे नहीं पता था डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी इतना ज्यादा, बट हाँ वो पैशन था। ड्रेस बहुत शौक था अच्छे ड्रेसेस पहनने का, डिजाइन्स मैं खुद ही करती थी। अपने मम्मी को बोलती थी कि मम्मा ये पैटर्न चाहिए मुझे, ये बना के दो, वो बना के दो। वो क्रिएटिविटी पहले से ही थी। बट डिजाइनिंग के फील्ड में जब गई तो जब मुझे बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिला और मैं भागती स्टेज पे गई थी, दो वो फर्स्ट अवार्ड, आज तो इतने सारे अवार्ड्स है दैट आई हैव अ वॉल ऑफ फेम, बट वो पहला अवार्ड हमेशा आपके लिए प्रीशियस होता है। सो वो अवार्ड मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, दैट आई गॉट रिकॉग्नाइज एज अ डिजाइनर after that, a certified designer. So that Right. was a life changing moment. After that, life changing moment जो हुई मेरे साथ, that I won the crown. ब्यूटी पेजेंट भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। when Aishwarya Rai and Sushmita Sen, they was crowned in 1994, I used to see that beauty pageants, and I just love that, the crowns and the question answers round and the ramp walk, everything वो मुझे खींचता था अपनी तरफ। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ में ये सब लिखा हुआ है कि मैं भी कभी क्राउन पहनूंगी या आई विल ऑल्सो बिकम अ क्वीन। सो या दैट विनिंग अ क्राउन वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, एंड उसकी वजह से मैं क्राउन विनर भी हो गई। उसके बाद मैं ब्यूटी पेजेंट्स के साथ भी कनेक्टेड हो गई, एंड टुडे आई एम अ डिजाइनर पार्टनर फॉर ब्यूटी पेजेंट्स। आई गो एज अ ज्यूरी मेंबर because I have already earned the crown and so many titles. Also, I am a styling coach because मैं designer हूँ तो मैं styling tips वगैरह ब्यूटी पेजेंट के कंटेस्टेंट्स को देती हूँ। तो यस, अगर मैं वो क्राउन नहीं जीती तो आज मैं इतना आगे नहीं जाती। तो एक के बाद एक जो सक्सेस आई मेरी, बट फर्स्ट क्राउन इज ऑलवेज प्रीशियस, फर्स्ट अवार्ड ट्रॉफी इज ऑलवेज प्रीशियस। एंड बच्चे हमारे दे आर तो प्राइजलेस, उनको मैं क्या बोलूं, लाइक। आई होप ये सो वीडियो वो भी देखें एंड दे मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। या, इवन आई एम प्राउड ऑफ माई किड्स। ये तो मैम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स तो मेरे हिसाब से सारे हो गए हैं। तो अगर आप कुछ एडवाइस कुछ शेयर करना चाहती हो हमारी ऑडियंस को तो आप शेयर कर सकते हैं। One advice I would like to give to all women, that be independent and self love. सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्यार करो, अपने लिए टाइम निकालो। आपके खुद के वेलबींग और हैप्पीनेस के लिए सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम विमेन अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, दुनिया के बारे में, सास ससुर माँ बाप बहनें भाई, सबके बारे में सोचते हैं, बट हम खुद को भूल जाते हैं। मेरा एक ही मैसेज है सब विमेन को कि आप खुद के बारे में सोचिए, अपने आप को प्रायोरिटी रखिए। इफ यू आर फाइन, इफ योर कप इज फिल्ड with happiness and love, then only you can pour to others. So just believe in yourself and self love, and keep doing and achieving whatever you want in your life. Nobody can stop you than you yourself. कोई नहीं आपको स्टॉप कर सकता है, आप खुद को स्टॉप करते हो by giving some excuses. So don't give the excuses. Whatever you want to become, find out your niche and do something in life and make a remark in the society. That's a message I would like to give. थैंक यू मैम फॉर दैट मैसेज। सो गाइज यहाँ पे मेरे क्वेश्चन आंसर तो सारे खत्म हो गए हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा हो। तो मैम मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए आप ही अपील कर दीजिए क्योंकि शायद ये आपकी बात ज्यादा माने। How sweet of you, Utkarsh. But it was wonderful talking to you. Thank you so much for bringing me on board on this platform. It was super interactive session with you. मुझे ऐसे लगा मैं आपके साथ बैठ के बातें ही कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग कुछ इंटरव्यू कर रहे हैं। So guys, if you are watching us live on YouTube, please like, subscribe the channel of Utkarsh. Thank you so much. थैंक यू मैम। सो गाइज यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। तो तब तक के लिए अगर चैनल पे नया हो तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट में बताना और किस पे इंटरव्यू चाहिए, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।